करंटली आई एम अ CBSE 10th ग्रेडर। टीजी की बुक्स जो भी टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं कर पाऊँ, लाइक ग्रामर में नहीं करते, लिटरली कॉपिंग एवरी टेक्स्ट ऑफ द बुक इनटू माय नोटबुक एंड बैच एम आई टेकिंग, लाइक व्हिच रेफरेंस बुक टू प्रेशराइजिंग यू कि तुम खरीदो। Hi everyone, welcome back to the channel. This is Ritu and I welcome you all to the Ritu's Vibe. And if you're watching me for the first time, let me introduce myself. Hi, I'm Ritu Singh and currently I am a CBSE 10th grader and I would be giving my boards next year. And on this channel, I share study tips and study vlogs, how am I doing this or that. So basically, you can consider this as a lifestyle channel of a student 10th grader. So the reason behind making this video is that because lots of you were constantly commenting in my videos that which batch you would be taking, which books, which this, and like a lots of things you guys were constantly asking. So I thought of why not to like break everything in just one video. So in this video I would be taking all your questions, all your things which you have mentioned in my comment section. So without a further ado, let's get started. Okay, so the first question which I would be taking, that which batch am I taking? Like this is the most requesting one and I have been getting this comment from the last almost 1 month constantly. So today finally I would be disclosing it and like considering all of the factors, all of my thoughts upon the teachers and मैं जिनसे भी teachers से regularly पढ़ती हूँ. And if you're following me from class 9th journey, then you must have known that I have took Abhay batch in my class 9, which was a type of revision course. So yeah, I have finally decided to enroll in Arambh batch 2025 of Next Toppers. Like मैंने काफी ज़्यादा सोचा कि which teacher would be best for me और मुझे किसमें ज़्यादा चीज़ें मतलब I would be provided with. And lots of you were also commenting me कि आरंभ बैच बहुत अच्छा है. काफ़ी सारे मैंने सीनियर से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि आरंभ बैच बहुत अच्छा है. So सबके थॉट्स को मैंने सोच कर फाइनली मैंने डिसाइड करा है कि मैं आरंभ बैच लूँगी. And like this was all about my perception. It may be different for you, but मेरे को तो आरंभ बैच बेस्ट लगा for myself. So yeah, that I have invested in Arambh batch for my 10th grade, my 10th journey. But wait, let me introduce you about Arambh batch 2025. So in this batch, you will get the opportunity to do live classes with Digraj sir, Shobit bhaiya and Prashant bhaiya, which are one of the best educators for class 10. And here you will get recorded sessions of Hindi, English, IT, which you can watch at your convenient time. And you know how much students trust Digraj sir, Prashant bhaiya and Shobit bhaiya. So like trusting upon their trust, I have taken that batch. और इस बैच में तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स बेसिक से लेकर एडवांस तक क्लियर कराए जाएंगे, जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी. एंड अलॉन्ग विद दैट तुमको यहाँ पर आंसर राइटिंग पे भी फोकस कराया जाएगा. तुमको लिखने के लिए टिप्स दी जाएंगी, बताया जाएगा तुम कैसे लिख सकते हो. बिकॉज आई थिंक दिस इज द फैक्टर वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स lack, even sometime I. So I hope that it would be a wonderful for us. और तुमको पता है कि नेक्स्ट टॉपर से कितने सारे टॉपर्स बने हैं बोर्ड एग्जाम में, लाइक 99.8%, 99 above %, लाइक दिस इज इनसेन. और अगर तुमको भी आरंभ बैच ज्वाइन करना है, देन यू कैन यूज द अर्ली वर्ड कूपन नेक्स्ट 1100 फॉर सम एडिशनल डिस्काउंट. सो नाउ लेट्स कमिंग बैक टू द वीडियो. ओके, तो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं बुक्स कौन कौन सी यूज करने वाली हूँ, बिकॉज books play a very crucial role in every student's life. So सबसे पहले जो book I would be using that the great NCERT. मतलब NCERT में इतनी बार मतलब I think मैं almost अपनी सारी वीडियोस में बोलती हूँ, तुम कुछ भी करने से पहले तुम NCERT कर लेना. NCERT is like the superior. तुम कुछ भी करने जाओ, कोई भी तुम क्वेश्चन बैंक करने जाओ, कॉन्सेप्ट मैप, तुम कुछ भी करने जाओ, सबसे पहले अपनी NCERT को एक बार रीड कर लेना, जो बेस्ट वे आई कैन से यू. एंड देन फिर कमिंग टू द रेफरेंस बुक की NCERT को और अच्छे से समझने के लिए, एक एक पॉइंट को डीप में समझने के लिए. सो फिलहाल तो आई एम यूजिंग MTG की बुक्स, जो भी प्री फाउंडेशन वाली बुक्स है, जो कि मैं उनको ऑलरेडी अपने पिछले आई थिंक 3-4 वीडियोस में दिखा चुकी हूँ. सो आई वुड बी यूजिंग दैट बुक. एंड फिलहाल तो अभी मैं MTG से कर रही हूँ. एंड द बेस्ट थिंग अबाउट दैट इज उसमें काफी सारे क्वेश्चंस भी हैं, लाइक काफी सारे क्वेश्चंस है ऑफ कोर्स. तुम उसमें
क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तुम्हारा एक तरीके से वो क्वेश्चन बैंक भी बन जाएगा। नॉट अ प्रमोशन वीडियो बट जस्ट आई एम लाइक कॉम्प्लीमेंटिंग बिकॉज उनकी बुक मेरे को थोड़ी सी अच्छी लगी। एंड देन कमिंग टू क्वेश्चन प्रैक्टिस हम कहाँ से करें, दो ऑप्शन है, तुम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो। एग्जाम्पलर में इट्स लाइक गुड बुक, काफी अच्छी बुक है, बट उनके जो क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो काफी हाई होते हैं, उनकी क्वांटिटी कम होती है, ठीक है। उसमें सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जो कि थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी शायद बोर्ड्स वगैरह में क्वेश्चन वगैरह आते हैं, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक सो, जितना मैंने गूगल पे पढ़ा था। सो ऑफकोर्स मैंने 9th में भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करी थी, मैं 10th में भी करूंगी। और अगर तुमको इन्वेस्ट नहीं करना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो तुमको ऑनलाइन मिल जाएगी, तुम अगर सर्च करोगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10 सब्जेक्ट वगैरह पीडीएफ तो तुमको मिल जाएगी, इजीली अवेलेबल है इंटरनेट पर। बाकी जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक। तो क्वेश्चन बैंक मोस्टली शायद ओसवाल के मे बी मैं लूं, अभी तो मैंने कोई क्वेश्चन बैंक नहीं दिया है बिकॉज अभी मैं सिलेबस उतना अच्छे से स्टार्ट नहीं करा है। वंस आई वुड गेट इनटू दैट पेस ऑफ कवरिंग माय सिलेबस देन आई वुड बी चूजिंग द बुक्स। एंड देन कमिंग टू सैम्पल पेपर्स, तो सैम्पल पेपर्स ऑफ कोर्स अभी मैंने नहीं लिए और मैं अब तुमको भी एडवाइस करूंगी सैम्पल पेपर अभी लेने की कोई जरूरत नहीं है। Once you are done with the chapter, once you are like finished with everything, each and every word, and now you feel that I am prepared for my board exam, then फिर तुम सैम्पल पेपर्स को उठा सकते हो। और अगर तुम्हें किसी अपनी सीनियर भैया दीदी से मिल रही है तो तुम उसको भी ले सकते हो, वरना इंटरनेट पे बहुत ज्यादा चीजें हैं, बहुत सारे चैनल जो कि फ्री में प्रोवाइड करते हैं। सो मे बी आई टेक द सैम्पल पेपर। ऑल्दो मैंने क्लास 9 में सैम्पल पेपर लिए थे पर मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं कर पाऊँ, क्योंकि मैंने सिलेबस से बिल्कुल एंड तक खत्म करा था। सो मे बी इस बार मैं ट्राई करूंगी अपना सिलेबस में पहले फिनिश कर लूँ एंड देन फिर मैं सैम्पल पेपर्स वगैरह लगाने की कोशिश करूँ, बिकॉज सैम्पल पेपर मानो ना मानो हेल्प तो करते हैं, ठीक है। एंड देन कमिंग टू नोट्स, जो नोट्स की बात कर रही हूँ, सो आई यूज टू मेक नोट्स फ्रॉम क्लास 9। मैंने क्लास 9 से नोट्स बनाना शुरू कर देते एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्लास 9 से नोट्स बनाते हैं। जैसे मैं साइंस के नोट्स बनाती हूँ उसमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखती हूँ और मैं मैथ्स के नोट्स नहीं बनाती हूँ। पता नहीं कुछ लोग मेरे को कमेंट कर देते हैं मैथ्स के नोट्स भेज दो, भाई मैथ्स के भी नोट्स होते हैं, मतलब हाँ यू कैन मेक अ फॉर्मूला शीट, फॉर्मूला चार्ट, बट नोट्स आई डोंट सी लाइक एनी सेंस टू दिस। फॉर मी तुमको अच्छा लगता है, यू डू व्हाट यू लाइक, सी इट्स कम्प्लीटली माई परसेप्शन जो भी मैं बोलती हूँ, बट तुम्हारा डिफरेंट हो सकता है परसेप्शन, तुम्हारी थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है मेरे से, तो तुमको वो करो जो तुमको अच्छा लगता है। पर जो मेरे को बेस्ट बात लगा कि मैथ्स में आई कैन रिकॉल दैट, आई कैन कीप दैट इनटू माय माइंड, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। एंड अगर मेरे को जरूरत नहीं है तो ऑफ कोर्स आई वुड ट्राई टू लाइक कीप दैट इन माय माइंड, नॉट जस्ट टू राइट इट आउट। सो और बाकी बहुत सारे लोग इंग्लिश और हिंदी के भी नोट्स बनाते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी के भी नोट्स बनाती हूँ, पर इस बार मैं ट्राई करूंगी एटलीस्ट जो चैप्टर्स होते हैं ना, या तो तुम अगर बुक्स खरीदते हो ना क्वेश्चन बैंक वगैरह से ओसवाल के तुम खरीदते हो फॉर एग्जांपल, या फिर एडुकार्ट के किसी भी पब्लिकेशन के खरीदते हो, तो वहां पर तुमको ऑलरेडी समरी मिलती है। सो इस बार मैं क्या करने वाली हूँ, मैं समरी को बहुत अच्छे से रीड करने वाली हूँ, उसमें से मैं कुछ पॉइंटर्स लूंगी एंड देन मैं बहुत सारी उसमें से मतलब चीजें कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी, अच्छे अच्छे वर्ड्स कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। सो फ्रॉम दैट लाइक समरी आई कैन मेक माई आंसर्स, जिससे मेरे इंग्लिश में नंबर ना कटे। मेरे सबसे ज्यादा नंबर इंग्लिश में ही कटते हैं, लाइक नॉट लैंग्वेज, लाइक ग्रामर में नहीं कटते, लिटरेचर में करते हैं। आई एम लाइक लीस्ट इंटरेस्टेड इन लिटरेचर, आई डोंट लाइक लिटरेचर, इसलिए मेरे नंबर भी कटते हैं। पर क्लास 10 में क्या ही कर सकते हैं, लाइक अब तुमको पढ़ना पड़ेगा वेदर यू लाइक द सब्जेक्ट और डिसलाइक द सब्जेक्ट। एंड हाँ, सो इस बार मैं जो नोट्स में चेंजेस करने वाली हूँ वो एसएसटी के नोट्स में चेंजेस करने वाली हूँ। क्लास 9th में क्या करती थी ना, फॉर एग्जांपल मैं मोस्टली दिगराज सर के वीडियोस देखा करती थी फॉर एसएसटी, तुमने भी पूरा साल देखा होगा। सो मैं जो स्लाइड्स होती है ना, दिगराज सर हमको पढ़ाते हैं, सो मैं क्या करती थी, मैं वीडियो को पॉज करके मैं पहले लाइक मैं लेक्चर ले रही हूँ तो मैं पहले उनका जितना भी स्लाइड में सब कुछ लिखा होता है आई यूज्ड टू राइट इन माय नोटबुक एंड देन आई यूज्ड टू लाइक प्ले द लेक्चर अगेन। बट ये इतना ज्यादा हेक्टिक टास्क है, इतना ज्यादा मतलब मेरे को प्रोडक्टिव लगता नहीं है। मैंने सोचा कि अभी जैसे मैं भी ना अपने जो फर्स्ट चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप वाला, वो मैं उसके नोट्स लिख रही थी, पर उसमें मैंने इतना हौश पौश कर दिया, मैंने उसको इतना डीक्लटरिंग वे में इतना गंदा सा लिखा। तो अब मैंने सोच लिया मैं एसएसटी के नोट्स बनाने में थोड़ी बहुत चेंजेस करूंगी। फॉर एग्जाम्पल जब मैं लेक्चर ले रही हूँ तो सिर्फ मैं अपना ध्यान लेक्चर पे लिखूंगी, नॉट इन राइटिंग डाउन पॉइंट्स और नोट्स, कुछ नहीं लिखूंगी। अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स सर बताते हैं अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे तो उसको मैं स्टिकी नोट से अपनी बुक के साइड में लिखूंगी। बट इस बार मैं अपने नोट्स खुद से बनाने वाली हूँ, लाइक जब मेरा लेक्चर कंप्लीट होएगा व्हेन आई विल रीड द एनसीईआरटी, आई एम डन विद बोथ ऑफ द थिंग्स, देन आई विल टेक माय नोटबुक एंड मेक माय ओन पॉइंट्स। इतने बड़े पैराग्राफ को आई विल ट्राई टू कंपाइल इट 3 and 4 lines and I would try to write my own language.
बिकॉज एसएसटी में इट्स लाइक तुम कितना लिखोगे, क्योंकि जो दिगराज सर स्लाइड से लिखवाते हैं वो मोस्टली एनसीईआरटी की लाइंस होती है, बिकॉज एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। और मैं क्या करती थी, मैं पूरी अपनी एनसीईआरटी को ही छाप लेती थी नोटबुक में। आई थिंक यू आर गेटिंग इट। मैं पूरी एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में लिखती थी। एंड आई डोंट सी एनी सेंस इज दिस इज लिटरली नॉनसेंस। आई डोंट नो व्हाई आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर सच अ लॉन्ग क्लास 9 में, बट आई वुड चेंज दिस राइट नाउ। और मैं एसएसटी में खुद के नोट्स बनाऊंगी, बिकॉज एसएसटी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। उसके हर एक लाइन से एमसीक्यू क्वेश्चन, उसके हर एक पैराग्राफ से क्वेश्चन बन सकता है, मतलब इतना वास्ट है, तो कब तक लिखते रहूंगी। सो दैट इज वाई मैं एसएसटी में कुछ चेंजेस करूंगी। अगर तुमको उसकी वीडियो चाहिए होगी, पहले मैं खुद से इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। मैंने सोचा ऐसा, पहले मैं खुद से इंप्लीमेंट करूंगी, एंड देन फिर अगर मेरे को लगता है कि यस अब मेरे को नोट्स अच्छे से बनाना आ गए इस सब्जेक्ट में, एंड देन इफ यू वांट अ वीडियो ओवर दैट, देन मैं ट्राई करूंगी कि मैं वीडियो बनाऊं। बिकॉज एसएसटी में अगर तुम लिखने पे आए ना, तो अगर तो तुम उसमें बहुत कुछ लिखने को, यू कैन नॉट स्टॉप राइटिंग देन। ओके, so the next question is that कि when are you expecting to finish your syllabus? So अभी तो I have not started, मतलब थोड़ा थोड़ा I am studying, ठीक है। मैं थोड़ा साइंस पढ़ लिया, जैसे मैंने फिजिक्स पढ़ लिया थोड़ा बहुत, मैंने मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर कर लिया है, बट आई एम नॉट लाइक पुशिंग मी हार्ड कि तुम जल्दी जल्दी सिलेबस करो, तुम सब खत्म करो, जल्दी खत्म करो, फिर तुम सैम्पल वर्ड्स लगाओ, नहीं। बिकॉज आई डोंट थिंक कि क्लास 10 का इतना भी कोई बड़ा सिलेबस है कि इसको इतना हाइप अप कर रहे हैं कि जल्दी जल्दी करो। फॉर मी आई विल टेक दैट अ लिटिल स्लो, बिकॉज मेरे को पता है मैं कर लूंगी। लाइक आई वुड ट्राई टू एंड टिल दिसंबर, मतलब दिसंबर के पहले ही खत्म हो जाए, देन इट वुड बी गुड। बिकॉज अगर मैं साइंस मैथ्स पे आई ना, तो मैं कर सकती हूँ साइंस मैथ्स, इफ आई चूज, तो मैं अपनी समर वेकेशन में पूरी खत्म कर सकती हूँ। इट्स नॉट दैट वास्ट, मतलब बस खत्म कर लो, देन फिर पूरे साल रिविजन करते रहो। बट मैं सोच रही हूँ सबको कंसिस्टेंसी बना के चलूंगी, वरना मैं मोस्टली साइंस मैथ्स ही पढ़ते रहती हूँ। एसएसटी भी कभी कभी बहुत कम पढ़ने लग जाती हूँ, सो इसलिए दैट इज द थिंग। And now I would be answering to some more questions. Okay, so I have some of them. First is, which reference book to prefer for science SST subject? Please also include that in video 2. How to manage many subjects, giving importance to each subject, and also complete reference books at time. Which science books like Pradeep Lakshmi Singh 1 or only example? Please include that too. By the way, I also started my class 10 and I was confused. Okay, so फिलहाल तो मैंने एमटीजी की बुक्स ली हैं, मैंने लखमीर सिंह नहीं ली है। मेरे को एमटीजी मेरे को ज़्यादा अच्छी लगी, दैट्स वाई मैंने एमटीजी को चूज़ करा है। एंड बाकी जो बात रही कि डिसलाइकिंग की, मेरे को भी बहुत सारे सब्जेक्ट से डिसलाइक है, मेरे को नहीं अच्छे लगते वो पढ़ना, बट फिर भी पढ़ना तो पड़ेगा ही। सो मैं ट्राई करती हूँ, जब मेरे को थोड़ा अच्छा फील होता है ना, तब मैं वो सब सब्जेक्ट पढ़ती हूँ जो कि मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं। बट जब मैं बहुत बोरिंग मतलब जब पढ़ने का नहीं मन कर रहा है, तो कभी कभी देन आई चूज द सब्जेक्ट जो कि मेरे को पसंद आता है। साइंस मैंने कर लिया, मैथ्स कर लिया, सो उससे बहुत अच्छा बूस्ट मिलता है, ठीक। आई डू दैट इन माई केस। And now let's come into the next question, which is, I'm also in class 10. I'm finding best question bank for this session if you buy any, so please make the video and if you can suggest any. So suggest तो अभी मैं कोई कुछ नहीं कर सकती, because जब तक मैं कोई चीज़ खुद ट्राई नहीं करती, मैं खुद इम्प्लीमेंट या फिर खुद से मैं देखती नहीं हूँ, I cannot suggest you guys, ठीक है। Once I will get the question back, I will suggest you. Next question is, which reference book are you taking for scoring 90 plus like guide that the book should include topic, clarification and extra questions? I am currently taking MTJ books, but अगर इन फ्यूचर मेरे को कोई अगर और कोई बुक्स मिलती है लाइक एज अ कोलैबोरेशन, देन अगर आई विल शेयर दैट इन माई वीडियो। एंड या इफ आई एम शोइंग एनी ऑफ द बुक इन माई वीडियो, सो आई एम नॉट लाइक प्रेशराइजिंग यू कि तुम खरीदो। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव यू द ऑनेस्ट रिव्यू, ठीक है, एंड गिव यू ऑल द डिटेल्स अबाउट द बुक। अगर तुमको बाय चांस तुम्हें अब तक बुक नहीं खरीद, तुमको अगर बुक खरीदनी है और तुमको मेरी वीडियो उस रिव्यू वीडियो से देख के पता चल गया अच्छा इसमें ये फैक्टर्स है एंड दैट सूट्स फॉर मी, दैट इज बेस्ट फॉर मी, तो तुम खरीद सकते हो। दिस इज व्हाट वी मीन बाय कोलैबोरेशन और लाइक स्पॉन्सरशिप्स। पता है लोग चिढ़ने क्यों लग जाते हैं प्रमोशन क्यों कर रही है, लाइक दिस इज ट्रू, आई हैव गॉट सच कमेंट्स। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव इज स्टडी टेबल टूर। Okay, I may make, but I don't have such everything like so organized. It's like always messy, but I will see. Like if I get some new things, new stationaries, new supplies, then I would arrange them, make it good, and then I may show that. And many of you were also asking me for my room tour. Let's see whether I would make that or not. So yeah, these were all of the questions, and I hope तुमको सारी चीजें पता चल गई होंगी। And अभी मैं कुछ फ्यूचर में और भी कुछ करने का सोच रही हूँ अपार्ट फ्रॉम जस्ट 10th सिलेबस, बिकॉज मेरे को अपने स्कूल सिलेबस से स्टिक रहने का मेरे को बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। आई जस्ट ऑलवेज वॉन्डरिंग एंड ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या कर सकती हूँ। सो वो चीज़ तो मैं तुमको भी अपनी आगे वाली शायद वीडियोस में बताऊंगी, फिलहाल तो नहीं। एंड यार डू लेट मी नो तुमको ये बैकग्राउंड कैसा लग रहा है। लाइक आई
इन्वेस्टेड इन दिस ड्यूरिंग माई विंटर वेकेशन बिकॉज मैंने सोचा था कि अपनी वीडियोज यहाँ पर लाइक स्टैंड होकर इसे बनाऊंगी. सो डू लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस अबाउट माई दिस बैकग्राउंड. And most of you are asking me how like I got them. I ordered it online and I got in a pack of 54 posters, and I think I got this for around 154 rupees. So I think it's a value for money product, and I can even use this in my videos, and it even like enhances the beauty of like this white uh, wall. So do let me know in about this, and if you like this background, then I will be like more making such chit chat videos or sit and talk videos in front of this. This was all for this video, and I will be meeting you in the next video. Till then, take care and bye bye. And do subscribe कि तुमको ऐसे ही और 10th के content मिलते रहे.